Good evening, everybody. Welcome back to Be More with Less series. This is the second episode of that series. For the people who have joined, can I request to please, please mention in your comment box the name of the person who has joined. Am I audible to you? Hi Anup, good evening. How are you? Devendra ji, a very good evening to you also. Welcome. So we got Mr. Anup Upadhyay, Mr. Devendra Khare. For the rest of the people, please write your name in the comment box. We'll just wait for a few minutes and then we'll start the session. Okay guys, as the people are joining, let me just recap my last session. मैं आप लोगों के लिए एक बार रिकैप कर देता हूँ लास्ट सेशन जो हमने संडे को लिया था, जिसका कि टॉपिक था द इंटरेस्टिंग एंगल्स ऑफ लाइफ इंटरव्यूज. So I'll just repeat it. Meanwhile, the person who are joining during my discussion are requested to put their name in the comment box so that I am aware that who has joined. Thank you so much. Okay, so first of all, हम लोगों ने जो last session किया, अच्छा, my mode of communication would be Hindi and English. So if at any given point of time you feel that कि English थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, then please interrupt. You can always interrupt me. और हिंदी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो you can always interrupt me, right? So for the convenience of both crowds, that is Hindi and English, I would be using both the languages simultaneously. Right. So in last session, this session is basically about life interviews, जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि what is the difference between a trainer, a coach and a faculty, जहाँ पर हम लोगों ने demarcate किया था कि how coach is different from a routine trainer. Then we came to the thing that there are several differences between a trainer and a coach, wherein the trainer is slightly responsible for the given set of change in the learner's behavior, whereas the coach supports day in and day out, and he is more responsible as far as change in the behavior of that particular person is concerned. Then फिर हम लोगों ने देखा था कि why life coaching is gaining a lot of popularity nowadays, because this concept was basically has come from Western countries where it has become a lot of success, जहाँ पर कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. उसी को देखते हुए आज हम देखेंगे जिस तेजी से हमारे देश का भी परिदृश्य बदल रहा है, the situations are changing, उस हिसाब से हर किसी को आजकल ये फील होने लगा है कि फॉर डेवलपिंग देयर परफॉर्मेंस, फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस एंड फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे वुड रिक्वायर कोचिंग. सो अब कोचिंग तो रिक्वायर्ड है, लेकिन उसमें हमने देखा था कि बेसिकली फॉर व्हाट कोचिंग इज रिक्वायर्ड. सो हमने देखा था देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस सच एज लाइफ कोचेस, एग्जीक्यूटिव कोच, एंटरप्रेन्योर कोच and so on and so forth for different dimensions of the life. फिर हमने देखा था कि basically जिस हम लाइफ इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं, what are these life interviews? So लाइफ इंटरव्यूज में हमने देखा था कि basically हम जो भी किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो basically there is a transaction which is happening. इसे हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं. जैसे मैं अभी आपसे जो संवाद कर रहा हूँ या जो डायलॉग कर रहा हूँ, it is also one of the transaction which I am doing with you. So to become successful and to have improvement in your performance, you must have certain attributes जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है ट्रांजेक्शनल कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए. तो वो कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिससे कि हम अपनी ट्रांजेक्शनल कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रांजेक्शनल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोगों ने ये सीरीज की शुरुआत की है, जिसका कि नाम है बी मोर विथ लेस, जिसका कि मैंने फर्स्ट एपिसोड जो है संडे को किया था एंड टुडे इज द सेकंड एपिसोड. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिकॉज वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द टाइमलाइन, बिकॉज एक सेशन हम संडे को करेंगे, तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया है कि संडे का जो टाइम है
वो इवनिंग आवर्स में होना चाहिए, से अबाउट 4 PM और 5 PM, सो दैट वी हैव टेकन, बिकॉज मेजोरिटी लोगों ने यही सजेस्ट किया है, सो वी विल गो बाय दैट. एंड क्योंकि सिंस देयर इज अ वर्किंग डे, आई मीन one session we'll do it on Sundays and another one on the working days, so we have chosen Wednesday and the time is 8 PM. यदि आप लोग अपना सजेशन देना चाहते हैं that you know some other time would be much more suitable than 8 PM, then आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा and we will go as per the majority of the suggestions which we receive, right? So आज जो हम जिस चीज को एड्रेस करेंगे, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि टू इम्प्रूव द ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी देयर आर 3 C's which are very very important. The first C is called as confidence, the second C is called as conviction, and the third C which is very very important is called as communication, right? So in short these are known as the 3 C's of building transactional competencies. तो आज हम जिस सीज की बात करेंगे वो है कॉन्फिडेंस एंड देन कन्विक्शन. तो आपने देखा होगा कि यदि हमारे इस ग्रुप में हम देख रहे हैं कि देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, देयर आर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड सम ऑफ देम आर हाउसवाइफ्स ऑल्सो. तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि भले ही आपका कार्य क्षेत्र कोई भी हो, आपका वर्किंग फील्ड कोई भी हो, बी इट योर होम और फैमिली, be it your office or be it your institution or colleges. यदि आप कॉलेज के केस में बात करेंगे, इंस्टीट्यूशन के केस में बात करेंगे, वहां पर आपको ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज आप अपनी पढ़ाई खत्म करके अपना करियर की शुरुआत करना चाहेंगे. तो करियर की शुरुआत करने के बाद में यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं या अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, वहां पर भी आपको ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज की जरूरत पड़ेगी. यदि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई नौकरी करना चाहते हैं, वहां पर भी आपको यू विल फेस अ नंबर ऑफ इंटरव्यूज एंड टू क्रैक दोज इंटरव्यूज, वहां पर भी आपको ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव या डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी. तीसरी बात, यदि आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं या आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, तो डे इन एंड डे आउट आपको अपने कस्टमर से, आपको अपने इंटरनल एम्प्लॉयज से ट्रांजेक्ट करने के लिए आपको ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो इन विच एवर फील्ड, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक 3 C's ऑफ ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी, बिकॉज हर किसी व्यक्ति को इन 3 C's की जरूरत पड़ती है. तो आज हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है बेसिकली इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, हम इसमें देखेंगे. हेलो अमित जी, या हेलो, वेलकम. महेश दूत जी, वेरी गुड इवनिंग सर, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर एपिसोड. Sandeep ji, thank you so much, and I'm really blessed that you have taken out your time to attend the live session. Thank you so much. Hi Snehal, good evening. Neha Goyal ji, good evening. Yeah, so what I was telling that कि first C is the confidence. अब कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हम लोगों ने काफी बार सुना है कि कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू सक्सेस, टू हैव अ सक्सेस इन योर लाइफ, और एक्सेल करना है लाइफ में तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए. लेकिन ऐसी क्या स्टेप्स हैं? चूंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसा टॉपिक है कि जिसपे में हम चाहें तो इवन अब 5 days का वर्कशॉप इस पे कंडक्ट कर सकते हैं. लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि बी मोर विथ लेस हमारी सीरीज का नाम है, इसलिए ये गागर में सागर वाला कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर मैं आपको बहुत ही फ्लैशली और बहुत ही कम टाइम में जो है आपको बेसिक पॉइंट्स टच बेस करता हुआ जाऊंगा, सो दैट आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अवेयरनेस आए और आपको पता भी चले कि हमें उस चीज के बारे में करना क्या है. सो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जो सबसे पहली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपने काफी बार नाम सुना होगा, कंफर्ट जोन क्या होता है. सो यदि मोटा यदि आप इस चीज को समझना चाहें, कंफर्ट जोन हमारा वो जोन होता है जिसमें कि हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं. एंड ऑब्वियसली जब भी कोई चेंज आता है या हमारे ग्रोथ के लिए हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई भी चेंज जब हमें आता है, तो हम उस चेंज को रजिस्ट करते हैं. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. हर ह्यूमन जो है अपने कंफर्ट जोन में बहुत ही ज्यादा रहना पसंद करता है और उस जोन से बाहर आना नहीं चाहता है, राइट? तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो है
कंफर्ट जोन क्या है, और हमें अपना प्लान उस हिसाब से बनाना पड़ेगा किस तरीके से हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। दूसरा चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नो योर वैल्यूज। कंफर्ट जोन से बाहर आप किस चीज के लिए आ पाएंगे, जब आपको अपनी वैल्यूज पता होंगे। वैल्यूज को पता होने का सबसे जो प्रमुख जो एट्रीब्यूट है वो है टू नो योर वाई। आपको यदि किसी भी चीज के लिए डेवलपमेंट लाना है या आपको किसी भी चीज के लिए यदि ग्रोथ लाना है, तो सबसे पहले आप इस पॉइंट पे फोकस कीजिए कि ये मैं क्यों चाहता हूं, या वाई डू आई रिक्वायर दैट। जब आपको आपके वाई का जवाब मिलेगा तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से उस दिशा में प्रयास कर पाएंगे और उस चीज में सक्सेसफुल हो पाएंगे। थर्ड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सेप्ट द चेंज। एक्सेप्ट द चेंज से मेरा मतलब यही है। हाय हेमंत जी, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। दूसरा मैं आपसे ये कह रहा था कि एक्सेप्ट द चेंज से हमें इससे अच्छा एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता है। हम लोग सब अभी कोरोना फेज से निकल चुके हैं एंड सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखा है इस कोरोना पीरियड में। जहाँ तक कोरोना के दुष्प्रभाव की बात है, जहाँ तक इसके इल इफेक्ट्स की बात है, आई रियली एग्री दैट डेफिनेटली काफी नुकसान हुआ है, जन का नुकसान हुआ है, धन का नुकसान हुआ है। वी हैव सीन लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस ऑल्सो। बट यदि आप देखें इसको पॉजिटिव एंगल से या पॉजिटिव एटीट्यूड से यदि आप देखें तो इस कोरोना ने हमें काफी कुछ पॉजिटिव भी दिया है। अब आप पूछेंगे पॉजिटिव क्या दिया है? डेफिनेटली इसने हमें ये सोचने को मजबूर किया है कि डेफिनेटली हम लोग सुपर ह्यूमंस नहीं है, राइट? देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम, देयर इज एन इकोसिस्टम इन दिस वर्ल्ड। और यदि हम वाकई में अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं और यदि हम अपने आप को किसी इकोसिस्टम से ऊंचा मानते हैं, तो डेफिनेटली इस कोरोना काल ने हमें लेसन दिया है कि कोई भी उस इकोसिस्टम से या प्रकृति से ऊपर नहीं होता है, राइट? काफी कुछ चेंजेस हमको अपने डे टू डे लाइफ में लाने पड़े टू सस्टेन दैट कोरोना एरा। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ यू ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल, यदि आप बहुत पुराना एग्जाम्पल दें कि जिसने भी अपने आप को समय के साथ में चेंज किया है, वो जो है बना हुआ है, वो उसका डेवलपमेंट हुआ है और उसने ग्रोथ को अटेन किया है। द सिंपल एग्जांपल इज डायनासोर्स। these were the gigantic creatures, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु थे, लेकिन आप देखिए समय के हिसाब से वो अपने आप को नहीं ढाल सके, तो आज जो है वो कहीं पर भी वो विलुप्त हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, दिस इज वेरी फनी बट दिस इज रियली ट्रू। वहीं पर आप देखेंगे जो कॉकरोच नाम का प्राणी है, उसने अपने आप को इतना म्यूटेट किया, उसने अपने आप को इतना चेंज किया, अडेप्ट टू द सिचुएशंस किया कि आज हजारों साल बाद भी आपको शायद पता होगा कि कॉकरोच जो है सीनियर मोस्ट प्राणी है इस धरती के, राइट? क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति में जिंदा रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल उस क्रिएचर से सीखने लायक है कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लीजिए, राइट? सो द सेकेंड पॉइंट विच I have discussed, the third point which I have discussed with you is that accept the change। और जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके उसको आप किस तरीके से कोप अप कर सकते हैं, ये सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। देन द फोर्थ थिंग इज दैट बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट से मतलब ये है कि आप लोगों ने काफी एक वर्ड सुना होगा जिसको हम एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है? तो मेरा मतलब ये कि जब भी आपको कॉन्फिडेंस में वृद्धि चाहिए, या इफ यू वांट टू ग्रो योर कॉन्फिडेंस, इफ यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट, देन सबसे पहले आपको अपनी इस कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी मतलब यदि आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो आपको सामने वाले के दृष्टिकोण से चीजों को समझने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं। सो फॉर दैट पिक्यूलर क्वालिटी one has to be a very good listener first, ठीक है? हर कोई बोलता है कि वो एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, ख्वाहिश है कि बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करूं, बहुत अच्छी ख्वाहिश है। लेकिन यदि आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर या बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस क्वालिटी को आपको बहुत ज्यादा निखारना पड़ेगा वो है यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। और जब आप किसी को बहुत अच्छे से लिसन कर सकते हैं, यू आर रेडी टू बी इन द प्रेजेंट, ठीक है?
बी प्रेजेंट से बहुत सारी शख्सियत के एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ. वन ऑफ देम माइट बी से यदि हम पॉलिटिकल क्लाउड की बात करें, सो बिल क्लिंटन वॉज वन ऑफ देम. पीपल जस्ट appreciate him like anything, that he was a charismatic personality and also was a very good listener and always known to be present in the situation. और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. तो यदि हम कॉन्फिडेंस की बात करें, मैंने आपको प्रैक्टिकल टिप्स दी है, जस्ट थ्योरेटिकल टिप्स नहीं दी है. सबसे पहले गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कीजिए. सेकेंड, नो योर वैल्यूज, अपनी वैल्यू को जानिए, अपने वाई को जरूर एड्रेस कीजिए कि आप क्यों वो चेंज लाना चाहते हैं. बिकॉज जब तक आपको उस वाई का आंसर नहीं मिलेगा तब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो पाएंगे कि ये चीज आप क्यों करना चाहते हैं. तीसरा, कोई भी चेंज आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी प्रेजेंट. तो ये मैंने जो है 4 टिप्स आपके साथ में शेयर की है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए. नाउ कम्स द सेकेंड सी. ऑब्वियसली सीधी सी बात है, यदि हम कन्विक्शन की बात करें, कन्विक्शन और कहीं से नहीं आता है, जबकि कन्विक्शन जो है सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट फील करने से ही आता है. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस डेफिनेटली नॉलेज से आता है. यदि हम सारे टारगेट सेगमेंट की बात करें, बी इट कॉलेज स्टूडेंट्स और बी इट प्रोफेशनल्स और बी इट हाउसवाइफ्स, यदि आपको अपने अपने कार्य क्षेत्र का नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस आपका अपने आप ही बढ़ जाता है. और जब आप किसी भी चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं, जब आपने वो प्रोडक्ट यूज किया होता है, जब आपने वो सर्विस यूज की होती है, तब आप बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ में अपनी बात को रख सकते हैं सामने वाले के सामने. राइट? सो कन्विक्शन को इंप्रूव करने का यही एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कीजिए, अपने स्किल सेट को इंप्रूव कीजिए, सो दैट कि आप जो कॉन्फिडेंस वाली चीज है और जो कन्विक्शन वाली चीज है वहां पर अपने आप को बहुत बेहतर फील करें. राइट? सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज में मैंने आपको 2 C's के बारे में बताया ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी के, जो कि है कॉन्फिडेंस और जो कि है कन्विक्शन. अब हम जब नेक्स्ट लाइव में आपके साथ में सेशन करूंगा, उसके बारे में आपको अभी से बता दूं, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि संडे को होगा, और वो है कम्युनिकेशन. राइट? एंड कम्युनिकेशन इज अ ह्यूज टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, और जहां पर हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करेंगे. राइट? सो आई थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मेरे सेशन को ज्वाइन किया. साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि गोइंग फॉरवर्ड, सिंस आई एम अ लाइफ स्किल्स कोच, तो आप लोगों को यदि कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल कहीं पर गाइडेंस की ज़रूरत है या कोचिंग की ज़रूरत है, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ देयर विथ यू, माई मेल ID इज़ ऑल्सो देयर विथ यू. आपको यदि कोई भी ऐसा एरिया है कि जहाँ पर आपको कोचिंग की ज़रूरत है, बी इट करियर और बी इट प्रोफेशनल और करियर और रिलेशनशिप, आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड फॉर द पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, द फर्स्ट सिटिंग विथ मी वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री. जी हाँ, फर्स्ट सिटिंग आप मेरा जो आपका होगा, जहाँ पर आई वुड ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड आई वुड ट्राई टू हेल्प यू identify your goals, and will chalk out the action plan that how the particular topic or the particular area can be addressed to would be complimentary from my side. Right? तो आप चाहें तो अपने सर्कल में भी बता सकते हैं, और मैं इसी तरीके से फेसबुक लाइव में हफ्ते में 2 बार आप लोगों से मिलता रहूँगा. तो आप लोग जो है इसी तरीके से आते रहिए, मेरा भी हौसला बढ़ाइए और आप भी कुछ लर्न करके जाइए. सो what I would suggest in the end, that if you are okay with the timing of this session and the day of this session, kindly mention in the chat box, and you want some another day or some another timing for this Facebook live, then you can suggest that also. Your suggestions are most welcome, your feedbacks are most welcome. So thank you so much. See you next Sunday with the 3rd C's of transactional competency, that is communication. Thank you so much. Enjoy. Thank you.